न माने जलधि जड़ भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब से कुछ देर पहले बुज़दिल दुश्मन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में मस्जिद सुभानुल्लाह, भावलपुर, अहमदपुर ईस्ट के इलाके में, कोटली के पास और मुजफ्फराबाद में 3 जगह पे फजा से मिसाइल दागे हैं। ये जहाज इनके हमारी फजाइया के जहाज इस वक्त एयरबोर्न है। 22 अप्रैल की वो तारीख भारत के इतिहास में सबसे काला दिन लेके आई। पहलगाम की वादियाँ एक ऐसे दहशतगर्दी हमले से गूंज उठी जिसमें धर्म के नाम के 26 लोगों को मारा गया। इस हमले से प्रधानमंत्री जी बहुत आहत हुए थे। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि अब जो भी हो जाए इन आतंक के सरगनाहों को उनके ठिकाने पे पहुंचाना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ली। इस मीटिंग में तय पाया कि जो भी भारत का बुरा चाहता है और भारत के लोगों को सुख चैन और कश्मीर को अमन से रहने नहीं देता, उनका अंत करना है। और फिर शुरू हुआ भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल भारत के इतिहास का एक ऐसा ऑपरेशन जिसने आतंकिस्तान को अपने घुटनों पे ला खड़ा कर दिया। ना कि बस घुटनों पे ला के खड़ा कर दिया, उसको औकात बताई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से ये अचीव किया कि हम बता के आएंगे, हम बता के मारेंगे। इतना ही नहीं, वापस आने पे बार बार बोलेंगे कि हाँ हमने मारा था, हिम्मत है तो आ दिखाते हैं तेरे को। वैसे भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत में आतंक फैलाने की काम किया था, उससे उसका ये नतीजा होना तय था। आखिरकार क्या हुआ था उस रात को 6 मई को 12:30 से लेके 1:30 बजे तक क्या हुआ? किस तरह से भारत के वीरों ने जो पाकिस्तान के आतंक के सरगना थे, उनके जो ठिकाने थे, उनको कैसे ध्वस्त किया गया? आइए सुनते हैं पाकिस्तान के इस एयर मार्शल की जुबानी। This is the Indian side, this is the Pakistani side. We had some caps in the north, center, south, and AEW just to support it. And the IF fighters started an initial build-up that was picked up from the north and the center across IB at 0010 hours. And by that time, PAF had initiated its response within 2 minutes. By 0012, our response was activated. The IF started to get their fighters get airborne in large numbers. By the time it has come to 12:30, we were pretty sure that this is going to be the day and the time to knock some sense into these guys once again. So we commenced our multi-domain operations, the pride and joy and the new concept of war that we have. This is the picture that's getting jumbled up. We have huge number of IF fighters that are stacked up in azimuth and in vertical all across, and the PF DCA response is in position. The complete package, when it gets into shape, it is on 4 axes, and we perceive that they will have 4 incisions just to embroil. Up to 60 aircraft, including 14 Rafales, were electronically ID'd by all through our electromagnetic operational environment. We call it the EMO. So by the time they were in air, we had sorted out and contracted all fighters and accounted for. The 60 number, that augmented to 72 through their scrambles that kept on coming just to reinforce and supplement and to saturate the air defense. They thought they could do that for the Pakistani ADG, air defense ground environment. The complete DCA package response by Pakistani side was also there. We had 42 high-tech aircraft on our side, and the strategy was to have force concentration in our selected AOR and fight at our own strength. PF fighters
ensured Pakistan's air sovereignty, and because of that, we first rerouted all civilian traffic that was about to go from Lahore, Islamabad, in this area, because we thought that this is going to be the hot plate. So we wanted safety for all the civil airliners. When they had seen this kind of a strong defense on our side, they resorted to launching their air-to-ground weapons while being cisfrontier. And as soon as they had launched the weapons, we could ID that instantly. And the Chief of the Air Staff, as I mentioned, he was in the COC. He has been there for a couple of nights. I have seen him there. So when I said that he spearheaded and he led from the front, he really did that. And he changed the contract. We were given the rules of engagement first to deter. And as soon as this thing happened, we changed our rules of the game in the air from deter to assure kill, deny own loss. PF strategy changed. We had a plan. We thought that Indians, the last time they said that they would have Rafales and they could have created any difference. So we targeted their center of gravity and the Rafales. That's why you see good numbers for that. We would have had more numbers, but we showed restraint. Ladies and gentlemen, the thing about this whole playtime was this thing lasted for more than an hour. With so many large number of aircraft, so many large number of aircraft on both sides, with so many grinds, and the flow of the BVR, the modern warfare has changed so much that the long stick, the employment is if you don't shoot, you get shot. So that is why the art was to employ them optimally, and that was a big challenge for us. That is why I say that it has never happened before. These are the locations with the range bearing that we think that we are sure that we have shot. A MiG-29 was shot 8 miles from LOC, bearing 243, 20 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192, 19 miles, 25 miles from LOC. We have the exact details because you cannot, in the modern battlefield, you cannot conjure up things out of imagination. You have an electronic ID. The aircraft gets picked up by his data link. As soon as you put on your radar, you show yourself, and nobody can hide, nobody can deny that. A Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar. So you can have all these details. We have exact range bearings, and nobody can deny that. A Rafale was shot and the blip is disappearing, which is verified as you get down for the debrief. So none of the claims have any fat in them. So they are pretty clear, pretty concise, pretty accurate. And I have a audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number. One of his flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they're asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he has claims that I've seen an explosion in the air. And I will share this detail. It's a long RT that we have. If we can hear one RT of one formation member, we can. देखो, जिस किसी को ये प्रेस समझ में नहीं आई, मैं उसको इजीली थोड़े शब्दों में बता देता हूँ. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये औरंगजेब साहब है और इन्होंने बोला है
कि ये DGMO एयर ऑपरेशंस है इनके, मतलब जो भी हवाई लड़ाई हुई है इसके ये डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने बोला कि रात को 12:10 पे, कब 6 तारीख को, वो 7 तारीख की ही सुबह मानी जाती है वैसे तो, इंडिया के प्लेन्स जो है वो उड़े, और जैसे ही वो उड़े उनको पता चल गया। अब कैसे पता चल गया जी, हम सबको पता है, चाइनीज़ वॉज हेल्पिंग देम इन ऑपरेशन सिंदूर। और वैसा हुआ भी है कि जैसे हमारे पायलट्स टेक ऑफ करे उनको खबर लग गई थ्रू चाइनीज़ सैटेलाइट्स, क्योंकि चाइनीज़ अपना डेटा उनको शेयर कर रहे थे रियल टाइम वाला। सो उनकी प्रिपेयरनेस रेडी थी। अब देखो, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, दुश्मन तैयार है, वो पिछले 15 दिनों से तैयार है कि आप आओगे। उनकी एयरफोर्स लगातार सॉर्टीज़ करे जा रही है। एंड टुडे, जिस दिन D-Day था, उस दिन भी इंडियन एयरफोर्स को कोई आसान नहीं था आगे जाके वह हलवा है फूंक दिया, नहीं। सामने पाकिस्तान का एयर डिफेंस और पाकिस्तान के जेट्स तैयार थे। उसने बताया कि 10-12 बजे तक हमारा जो डिफेंस था वो तैयार हो गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया के जो प्लेन्स थे वो लगभग, सोफिया कुरैशी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैं इसके बाद ऐड करूँगा, आप उस वीडियो को भी देख लेना। तो उसमें उन्होंने कहा है कि रात के 1:05 को पहला बॉम्ब जो है वो हमारा ड्रॉप हुआ है, और वो 1:05 से लेके 1:30 तक, ये जो पूरा समय है, इस समय में हमारी एयरफोर्स ने पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया है। तो ये भाई साहब जो बता रहे हैं 12 बजे से, वो इसलिए बता रहे हैं कि 12:10 पे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने टेक ऑफ करा था, और वो 12:30 बजे के आसपास IB के आसपास पहुंच गए थे। अब आप बोलोगे कि यार तो फिर ये तो 1 घंटा कैसे हो गया, इसमें तो लगभग 1.5 घंटे का फाइटिंग हुआ। सो सीन ऐसा है कि फाइटिंग का कैलकुलेशन इन्होंने IB पे जब इंडियन एयरफोर्स के जेट्स पहुँचे, क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि एक फॉर्मेशन उड़ती है, फिर दूसरी फॉर्मेशन उड़ती है, तो ऐसा करते करते एक्चुअल बैटल में कितने प्लेन्स है, और अब इनको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा है, ये जो है वो उतने ही है। तो वो जब तक वहाँ पे पहुँचे उनमें पूरा टाइम लिया है। तो 12:30 बजे तक IB के आसपास इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने 4 थिएटर्स में अपनी जो है पोजीशन ले ली थी। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सामने पाकिस्तान ने भी उसके जेट्स खड़े कर दिए थे, क्योंकि दे नो फ्रॉम 12 मतलब 12:12 से उनको पता था कि ये आ रहे हैं। अब वो कितने आ रहे हैं वो पता नहीं। सो उनका एयर मार्शल ये कह रहा है कि उनके लगभग 72 प्लेन्स थे और हमारे 42 प्लेन्स थे। सो ये जो बैटल हुई है ना 6 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एयर बैटल दैट इज़ एवर हैपन आफ्टर World War II, क्योंकि इतने ज़्यादा प्लेन्स कभी नहीं हुए थे। अब मैं वैसे भी ये पाकिस्तानियों को इतना भाव नहीं देता, बट इवन दो अगर हम पकड़ ले तो भी 50 से कम तो हमारे प्लेन्स नहीं थे। तो जब हमारे प्लेन्स IB तक पहुँचे, हमारे प्लेन्स को सामने क्या दिख रहा है? हमारे प्लेन्स को सामने दिख रहा है उनका अटैक रेडी, उनका डिफेंस रेडी है। अब इन सब में पूरे शार्पनेस के साथ हमें अपने जो पेलोड है वो गिराना है, एंड माइंड दैट कि हमको कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन हिट नहीं करना है, हमको किसी मिलिट्री से एंगेज नहीं होना है, और दूसरी बात हमको प्रिसाइजली ये जो बॉम्ब है वो गिराने हैं। मीन्स इट वॉज एन अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ स्किल दैट यू नीडेड इन दिस काइंड ऑफ वॉरफेयर। आपके सामने दुश्मन खड़ा है, वो रेडी है कि आप अगर गिरा दोगे तो हम गिरा देंगे। सो इंडिया ने 1:05 पे पहला बॉम्ब पेलोड ड्रॉप किया। अब जैसे ही इंडिया का पहला पेलोड ड्रॉप हुआ, उधर से एक्शन स्टार्ट हुआ, क्योंकि सामने तो उनके जेट्स थे ही। सो जैसे ही ये एक्शन चालू हुआ है दोनों के बीच में, अब हमको तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि यार मिलिट्री से पंगा नहीं, क्योंकि हमारा काम ये था कि एस्केलेशन को बढ़ाना नहीं है। बिकॉज अगर हम वो करना चाहते तो हम उनको आने ही ना देते, हम उनके प्लेन्स को कब के उड़ा चुके होते अगर ऐसा होता, क्योंकि हमारे पास S-400 है। हमें ज़रूरत नहीं है कि यार हम उनके अंदर 200 किलोमीटर तक अंदर देख सकते हैं कि कहाँ पे उनके प्लेन से क्या है क्या नहीं, लेकिन हमने वैसा किया नहीं। सो ये जो उसने एक क्लिप सुनाई है और उसने बोला है कि यार यहाँ प्लेन्स हिट हुए हैं। देखो यार, अगर सच बताऊँ ना तो ये बात थोड़ी सी इंडियंस को लगता है कि कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। बट देखो यार, आपके सामने दुश्मन खड़ा है, राइट?
यू आर टारगेटिंग और आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि आपको बस टेररिस्ट टारगेट्स करने हैं, मिलिट्री के साथ उलझना नहीं है, बिकॉज दैट विल लीड टू इंटरनेशनल वॉर। और इंडिया के पास उस टाइम पे कोई ऐसा वैलिड रीज़न नहीं था कि वो एक वॉर के फ्रंट को ओपन करे। अब आप बोलोगे फिर तो गवर्नमेंट ने हमारे सेना के हाथ बांधे थे, चीज़ नहीं है। वॉर में जाना एक अलग बात है, मैं वापस से बता रहा हूँ आपको, वॉर स्टार्ट करना बहुत ईजी है बट वॉर को एंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड अगेन दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, सो फिर ये भी मुश्किलात में डाल सकता था इंडिया को। उसके अलावा अमेरिका के जो इंटरेस्ट उस कंट्री में हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि नो डाउट आपका दोस्त रशिया है बट रशिया इज़ बिजी इन इट्स ओन वॉर। इसराइल हमास के साथ लगा हुआ है, सो आपको कोई मदद नहीं करने वाला ज़्यादा उस टाइम पे। सो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन इसलिए थे कि इवन दो वी बेयर आर लॉसेस, हमको मिलिट्री के साथ उलझना नहीं है उस टाइम पे जब हम एक न्यूक्लियर कंट्री के साथ डील कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि ये क्या बोल रहे हो तुम, फिर तो ये करना ही नहीं चाहिए था। देखो अगर नहीं करते तो फिर जो आगे एपिसोड्स हुए हैं वो नहीं होते, समझ गए। सो हमारे पास कैपेबिलिटी थी, बस हम ये दुनिया को बताना चाहते थे कि देखो यार हमने तो ये करा, इन्होंने ये करा है, एंड दैट हेल्प्स अस। जो वो बढ़ के मार रहे थे ना पहली हाफ में कि देखो हमने इनके रफेल गिरा दिए, ये गिरा दिए, वो गिरा दिए, वो बाद में जाके उनको काउंटर फायर कराए, क्योंकि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि हमारे सिविलियंस मारे गए, बट डीप डाउन सबकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ थी और उनको पता था कि इधर क्या चल रहा है। तो जैसे उन्होंने पहले इनिशिएट करा हमारे प्लेन्स को मार के, अब यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो ये कितनी भी बात कड़वी हो लेकिन हमारे कुछ प्लेन्स जो है ना वो हिट हुए हैं, बट उनमें जो रफेल का आंकड़ा उन्होंने बताया है, आई गेस दैट इज़ मोर एंड मोर डाउटफुल। क्योंकि देखो अब जब बैटल फील्ड में है तो किस तरह से आप प्लेन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आइदर उसको कुछ तो मिसाइल लग जाए जिसमें जो ऑपरेटर है उसकी स्किल कम हो आगे वाले से, दूसरी बात आगे वाला फाइटर प्लेन जो हमारा फाइटर प्लेन है उससे ज़्यादा बढ़िया हो, या तीसरी बात हमारे प्लेन में कुछ ऐसी बिगाड़ हो जाए जिससे सामने वाले को एडवांटेज मिल जाए। और बहुत सारे एनालिस्ट ये बता रहे हैं आज भी कि इंडिया का जो रफेल गिरे हैं जिसके बारे में दावे करे, इंडिया के जितने भी प्लेन गिरे हैं वो इसी एक चीज़ की वजह से गिरे हैं कि उसके मशीन में ही खराबी निकली थी। मतलब इट इज़ नॉट एन ह्यूमन एरर, इट इज़ अ मैकेनिकल एरर। तो जब मशीन एरर करती है ना, ह्यूमन उसमें कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए जो लास्ट में उसने क्लिप जोड़ी है जिसमें वो बता रहा है कि हमारे एक पायलट ने एक्सप्लोजन देखा, अब वो माइट भी मिराज का हो सकता है, वो माइट भी मिग का हो सकता है, लेकिन हाँ जो रफेल के आंकड़े उन्होंने दिए कि हमने 3 मार गिरा है, हो सकता है मे बी इट्स राइट, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया है कि यार देखो जब कोई मिसाइल आके किसी प्लेन को हिट करती है ना तो वो पूरा डेटा रिकॉर्ड हो जाता है। सो दैट्स वाई हमको ये समझना चाहिए कि 6 तारीख की रात को 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक घमासान हुआ है, हवा में अंधाधुंध दोनों तरफ से लड़ाई लगी थी। बस प्रॉब्लम ये था कि हमारे प्लेन्स जो है वो डिफेंसिव मोड पे थे और उनके प्लेन जो है वो अटैकिंग मोड्स पे थे। एंड ये एक बहुत अच्छी टैक्टिक्स थी, वो इसलिए ताकि हम उनके अटैक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए कि एक्चुअली वो प्लानिंग क्या करते हैं। एंड यू नो जब हमारे एयरफोर्स ने सेकेंड टाइम पे अटैक करा है ना, तो ये जो इनका इनिशियल अटैक करने का जो तरीका था ना वो इंडियन एयरफोर्स को बहुत 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 हेल्पफुल हुआ है। इसीलिए जो सेकेंड हाफ में जो 11 एयरबेस फूक गए थे ना, उस टाइम पे आप देख रहे होंगे कि उनका कोई प्लेन हवा में ही नहीं था, जब हमारे प्लेन जो है वो वहाँ पे लिटरली पूरा पाक का एयर स्पेस हमारा हो गया था। सो ये चीज़ हमको तब हेल्प करी है। सो अब ये जो पार्ट है वो हम यहाँ पे एंड करते हैं। आगे की स्टोरी जो है वो एक नए एपिसोड में हम लेके आएंगे कि कैसे 7 की इस सुबह की एयर बैटल के बाद के इवेंट्स क्या क्या हुए और पाकिस्तान जो है वो कैसे तिलमिला उठा और उसने कैसे एक के बाद एक गलत जो है डिसीजंस लिए और एट द एंड उसने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। तो देखते रहिए द इंडियन कॉमरेड। जय हिंद।